Greetings in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। Once again, welcome you all to the Covenant series of messages. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस वाचे के श्रृंखला में। In the Cutting a Covenant series, और इस वाचे की श्रृंखला में today the topic is cutting the animal in half. आज का शीर्षक है जानवर को आधे में काटना। Why the animals are cut in covenant? और क्यों वाचे में जानवर की कटाई होती है, Let us understand in the sixth part. इस 6वें भाग में इस बात को हम समझेंगे। Let us turn our Bible to Genesis chapter 15 verse 1. उत्पत्ति का 15 उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा को ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। After the war that happened in Genesis chapter 14, और 14वां उत्पत्ति में जो युद्ध हुआ उसके बाद the word of the Lord appeared to Abraham in a vision. यहोवा का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। When we hear the statement, the word of the Lord, और जब इस वाक्य को हम सुनते हैं कि यहोवा का वचन, we should remember that it as the Lord Jesus Christ. हमें स्मरण करना है कि ये प्रभु यीशु मसीह है। And we should keep this in mind and read the complete chapter. इसे मन में रखते हुए हमें उस अध्याय को पढ़ना है। So we are understanding this as Jesus. तो हम इसे यीशु के रूप में समझते हैं। Now we will read 15 verse 1. अभी हम 15 का 1 पढ़ेंगे। God says, परमेश्वर कहते हैं, I am your shield, your exceedingly great reward. मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। Because he was frightened with the incidents which happened in chapter 14. क्योंकि 14वें अध्याय में जो घटनाएं हुई उससे अत्यंत भय में थे। There some kings are carrying Lot and going. और कुछ राजा जो हैं लूत को उठाकर चले जाते हैं। Abraham rescues him and comes. अब्राहम उसे छुड़ा कर वापस आते हैं। In Genesis chapter 15 verse 2, उत्पत्ति के 15 के दूसरे वचन में God is giving an answer to Abraham. अब्राहम को परमेश्वर एक उत्तर देते हैं। The one who will come from your own body shall be your heir. और ये कहा कि तुम्हारे ही शरीर से एक जन उत्पन्न होगा। Why God is clarifying this? और क्यों परमेश्वर इसको समझाते हैं? Because in Abraham's mind, he is thinking he has to do something about the no child matter. अभी अब्राहम के मन में ऐसा था कि उसके वारिस के विषय में उसे ही कुछ करना पड़ेगा। So we are going to read from verse 2 to 5. We will see what is the discussion which is going on there. और उत्पत्ति का 15 उसका 2 से 5 पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या वार्तालाप होता है। Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? And Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। After this, what happens? Abraham is taken outside. इसके बाद अब्राहम को बाहर बुलाते हैं। God is showing the sky. परमेश्वर उसे आकाश दिखाते हैं। Look at the stars in the sky. कहते हैं तारागण को देखो तुम। And you count. If you are able to count, you count. और ये देखो क्या तुम उन्हें गिन सकता है? Your offspring is going to be like that. और तुम्हारा वंश ऐसा ही होगा। When these incidents are happening, beginning to happen, और जब ये घटनाएं शुरू होती हैं, the key statement, the one from your own body, own womb, your womb means it is Sarah's womb. और जब वह कहते हैं कि तुम्हारा
तेरा वारिस तुम्हारे ही निज पुत्र होगा, तो इसका मतलब सराय की कोख से जन्म लेगा। When God made Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया He made him male and female, और उसे पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में बनाया, which means male parts and female parts. जिसका मतलब पुरुषों के अंगों के साथ और स्त्री के अंगों के साथ। He took out the breast and the womb and made Eve. वो उसमें से स्तन और कोख निकालकर हवा को बनाया। So when he says the one from your body, he will be your son, means his body means what? It is Sarai's body. और जब वह कहते हैं कि तुम्हारी देह से ही तुम्हारा पुत्र आएगा, इसका मतलब है कि सारा से ही वह जन्म लेगा। So when Adam saw Eve, he said, "She is the bone of my bone and flesh of my flesh." और जब आदम ने हवा को देखा तो उसने कहा कि ये मेरे हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। So now God is telling Abraham, तो अभी परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, the one from your flesh. तुम्हारे ही मांस से। Abraham and Sarai both are one flesh. अब्राहम और सारा दोनों एक ही देह हैं। Let us turn our Bible to Genesis chapter 15 verse 6 and 7. उत्पत्ति का 15 उसका 6 और 7 हम पढ़ेंगे। And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit it. और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। When God said, I will give this land to inherit it, और जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इस देश को दूंगा तुम्हारे अधिकार में, Abraham is asking a question. अब्राहम एक सवाल पूछते हैं, How Lord, how I will understand this? मैं कैसे इस बात को समझूं परमेश्वर? God called him out of the land of Ur of the Chaldees. परमेश्वर ने उसे ऊर नगर, कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया था। Now the journey of Abraham is around 2,500 kilometers approximate. अब्राहम की यात्रा लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी की थी। And the time period was around 20 years. और समय काल था 20 वर्ष। It was a very, very difficult trip. बहुत ही एक कठिन यात्रा। Now we understand this in this difficult journey. अभी हम समझते हैं कि इस कठिन यात्रा में Now he is permanently shifting. अभी वह स्थायी प्रवास उसे करने वाले हैं। And that is going to be an excitement for them. और ये उनके लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात। And to make Abraham understand that, और अब्राहम को ये बात समझाने के लिए that God is going to give him a land as inheritance. कि परमेश्वर उसे विरासत के रूप में वह जगह देने वाले हैं। So God is taking him to the covenant in Genesis chapter 15. और उत्पत्ति 15 के वाचे में परमेश्वर उसे ले जाते हैं। That part of covenant is the cutting of animal. वाचे का वह भाग जानवर का काटना होता है। I am definitely giving you the land. और मैं तुम्हें जरूर ये भूमि दूंगा। So now the covenant takes place. अभी वह वाचा बनता है उनमें। In Genesis chapter 15 verse 9, उत्पत्ति के 15 के 9वें वचन में God says, यहोवा कहते हैं, bring a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove and a young pigeon. यहोवा कहते हैं, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले आ। God asks him to bring 5 kinds of total 5 things he is asking him to bring. परमेश्वर कुल मिलाकर 5 अलग अलग बातें कहते हैं लाने के लिए। Out of which 3 are animals, उनमें से 3 जानवर हैं 2 are birds. और 2 पक्षी। So number 5, it symbols grace. I have told you that. मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 5 नंबर जो है अनुग्रह का प्रतीक है। Then grace means it is Christ. Jesus Christ is the grace. और यीशु मसीह ही अनुग्रह हैं। That is to say, I am in covenant with our Lord Jesus Christ. और ये कहने के लिए कि मैं यीशु मसीह के साथ एक वाचे के रिश्ते में हूँ। In Genesis 15:10, उत्पत्ति के 15 के 10 में now he cut the animal and did not cut the birds.
उन्होंने जानवरों को काटा लेकिन चिड़ियों को नहीं काटा। I will read that verse. And he took unto him all these and divided them in the midst and laid each piece one against another, but the birds he divided not. और इन सबों को लेकर उसने बीच में से दो टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े न किया। Now, how this cutting of animals is taking place? अभी ये जानवरों की कटाई कैसे होती है? Now, actually, the animal is tied like upside down. और उस जानवर को उल्टा लटका दिया जाता है The cutting starts from here. और यहाँ ऊपर उसके माथे से शुरू होता है। Now, everybody look here. अब सब मेरी तरफ देखें। Cutting starts from the nose part. और ये कटाई यहाँ नाक से शुरू हो जाती है। It is a very, very painful cutting. और ये कटाई बहुत ही पीड़ा से भरी होती है। Normally, this cutting is there, na? और ये ऐसे जो काटते हैं गर्दन पर, Like how for slaughtering an animal, they cut like this. और जानवरों को काटने के लिए ऐसे गले पर वो चाकू चलाते हैं। That is easy. वो तो आसान है। The animal will die easily. और वो जानवर बहुत आसानी से मर जाता है। But this cutting is there, no? This covenant cutting. लेकिन ये जो वाचे की कटाई होती है, Very, very painful. बहुत ही पीड़ा से भरी। Now we have to understand that this is the hard part. और हमें समझना है कि यहाँ पर जो ये भाग होता है बहुत ही मजबूत और कठोर होता है। Now this is a soft part, so you cut immediately. The cutting happens. और ये भाग ये तो बहुत कोमल होता है, तुरंत काट सकते हैं। But this hard part is there, no? लेकिन ये जो बहुत कठोर हिस्सा है, When the cutting takes place, और जब वह कटाई होती है, the life will also not go. जीवन भी इतनी आसानी से नहीं जाता And the cutting also will not be easy. और वह कटाई भी आसान नहीं होती। So which means the cut to break this breaking is tough. So breaking this cutting takes place. और इसको तोड़ने के लिए जो वह कटाई करनी पड़ती है, And totally in the straight part, the cutting of the animal takes place. और उस जानवर को सीधा दो टुकड़ों में किया जाता है। Now, two pieces go like this. अभी दो टुकड़े ऐसे चले जाते हैं। So each piece will have this side 2 legs, this side 2 legs, and half of the head, both sides. Like that it will be. और दोनों तरफ आप देखेंगे कि उसके दो दो टांगे होंगी और उसके सर का आधा हिस्सा इस तरफ और आधा उस तरफ। So two people are walking and coming. तो दो लोग चलकर आते हैं। They are not wearing the slippers. Without slippers, they are coming. बिना जूते पहने वह आते हैं। One person should face the other person. और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होना पड़ता है। Now both animals are placed on the sides. और जानवर के दोनों टुकड़े ऐसे पड़े हुए हैं, Opposite. एक दूसरे के सामने। So now this two people have come and stand in the middle. अभी ये दोनों जन आकर बीच में खड़े हो जाते हैं। The animals are cut into two just to mention that you are going to get united in covenant. और जानवर इसके लिए दो में काटा जाता है, आपको ये बताने कि वाचे में आप दोनों एक बन जाएंगे। You both are not two, you both are one. आप दोनों अलग अलग नहीं, लेकिन आप दोनों एक बन जाते हैं। We as Christians are united with God and live in covenant. और हम मसीह होने के नाते परमेश्वर से हमारा रिश्ता है और हम वाचे में बंधे हैं। So we must live a life like Christ and Christ should be our model. और हमें मसीह के समान जीवन व्यतीत करना है और मसीह हमारा नमूना होना चाहिए। Now after they enter the covenant, और वाचे में बनने के बाद now they will look at each other and say, अभी एक दूसरे को देखकर वो ये कहेंगे, if you are going to break the covenant, अगर तुम वाचे को तोड़ोगे, what happened to this animal will happen to you. इस जानवर के साथ जो हुआ वह तुम्हारे साथ होगा। That is the way this covenant takes place. वैसे ही ये वाचा बनता है। Now read 15:11. अभी 15 का 11 पढ़ेंगे। Yeah. और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया।
We who are united in the covenant should be faithful to God. और हम जो वाचे में बंधे हैं हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। But if you are not going to be faithful to God, लेकिन अगर हम विश्वास योग्य नहीं बनेंगे, now I am going to show you some Bible verse, what it says, we will see. मैं आपको एक बाइबल का वचन बताऊंगा क्या कहता है। Let us turn our Bible to the book of Jeremiah, chapter 34, verse 18 to 20. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 18 से 20। Yes, 34, 18 to 20. और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े को 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच होकर किया परंतु उसे पूरा न किया, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगी। God is giving those bodies as feast to the birds of the air. और परमेश्वर उनके शरीर को उन पक्षियों के लिए आहार के रूप में देते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, now do we understand why the birds were not cut? अभी क्या आप समझते हैं क्यों उन चिड़ियों को नहीं काटा गया? The birds were not cut if because there is a failure in the fulfilling of the covenant. और इसलिए नहीं काटा गया कि अगर उस वाचे को निभाने में कहीं चूक हो जाती है, That birds will have a feast of the carcass. तो ये पक्षियों को जैसे एक बहुत बड़ा भोज मिलेगा उन लोथों को खाकर। Okay, now turn your Bible to Hebrews chapter 11. From verse 12 we will see. इब्रानियों की पुस्तक लेंगे उसका 11 अध्याय उसका 12वें वचन से हम देखेंगे। 12 to 16. 12 से 16 पढ़ेंगे। Yes. इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहता है वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनको परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now those who have entered into the covenant, और जो वाचे में बंधे हैं, now they are as numerable people. और वह अनगिनत हैं। When they have fulfilled the covenant, God has kept a beautiful place for them. और जब उन्होंने वाचा को पूरा किया तो परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर जगह तैयार की है उनके लिए। The last portion says, but now they desire a better country that is an heavenly place. और ये लिखा गया है कि आखिरी भाग में कि उन्हें एक और भी अच्छा नगर जो स्वर्गीय देश है उनके अभिलाषी हैं। Therefore God is not ashamed to be called their God, for He had prepared for them a city. क्योंकि परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now we have understood the basics of this entering into the covenant. और अभी हम समझ गए कि एक वाचे में बनने के लिए जो बहुत ही आधारिक बातें हैं। Now the cutting of the animal we have understood. अभी इस जानवर की कटाई के बारे में हम समझ गए That the animal has to be cut from here. कि जानवर को यहाँ से काटना शुरू करना Animal है is lying. और वो लेटा हुआ है। 2 people are coming. 2 लोग आते हैं बीच में, They are entering into a covenant. एक वाचे में बनते हैं And this is what God says और यही परमेश्वर कहते हैं to Abraham, I am entering into a covenant with you. अब्राहम से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक वाचे में बनता हूँ। This gives a guarantee I am going to give you the land. और ये एक निश्चित बात कहता है कि मैं तुम्हें वह भूमि दूंगा। Is it clear? क्या ये स्पष्ट है?
Everybody has understood? क्या सब लोग समझ गए? Okay. So we have been discussing every day from covenant, various parts of the covenant we are understanding. और हर दिन हम इस वाचे के भागों पर मनन करते आ रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। 6 parts we are completing today. आज हम 6वां भाग हम पूरा करने जा रहे हैं। Another 4 parts are there. और भी 4 भाग बाकी हैं। The bottom line, we have to understand, we are in covenant with the Lord. एक बात हमें समझनी है कि हम परमेश्वर के साथ एक वाचे में बंधे हैं And that covenant is an eternal covenant. और वह एक अनंत वाचा है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Okay, now let us continue with this cutting of the animal. और इस जानवर की कटाई में हम आगे बढ़ेंगे। What happens when Abraham is waiting there with the animal cut? और क्या होता है जब अब्राहम वहाँ पर इंतजार करते हैं और जानवर काट दिया गया है। Let us turn our Bible to Genesis chapter 15 verse 17. उत्पत्ति का 15 उसका 17वां पद हम पढ़ेंगे। Yes, Genesis chapter 15 verse 17. उत्पत्ति का 15 का 17वां वचन। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। Now Abraham has made all the arrangements for the covenant. अभी अब्राहम ने सब तैयारियां कर दी वाचे के लिए। The animal is cut. आज जानवर को काट दिया गया। Now Abraham has got afraid. अभी अब्राहम के अंदर एक भय छा गया। Now he is very silent sitting. अभी वो चुपचाप बैठा है। If I am not able to follow the covenant, अगर मैं वाचा नहीं निभा पाया, I have to die like this animal. मुझे भी इस जानवर के समान मरना पड़ेगा। Now if you see the verse before this, अगर आप इसके पहले का वचन आप देखते हैं, a deep sleep Abraham will fall. और बहुत गहरी नींद में अब्राहम पड़ जाते हैं। Who brought the sleep? कौन वो नींद लेकर आया? God only allowed the sleep. परमेश्वर ने ही उसकी अनुमति दी। Why? क्यों? Abraham is very afraid. क्योंकि अब्राहम बहुत भयभीत था। And at that time what happens? उस समय क्या होता है? And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed those pieces. और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। Smoking oven and burning torch passed between those pieces. और उन टुकड़ों के बीच में से जलती हुई अंगीठी और एक जलता हुआ पलीता उनमें से होकर निकल गया। Who is that? कौन है वो? It is our Lord. वह हमारे प्रभु हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। In place where Abraham has to go, और जिस स्थान पर अब्राहम को जाना था, he did not make Abraham come there. उन्होंने अब्राहम को वहां पर नहीं आने के लिए कहा। On behalf of Abraham itself, he himself passed that animal. और अब्राहम के स्थान पर वो खुद ही उन जानवर के टुकड़ों के बीच में से निकल कर गए। अब्राहम, you need not walk. तुम्हें चलने की आवश्यकता नहीं। You cannot do that. तुम वो नहीं कर पाओगे। I will walk in your place myself. और मैं तुम्हारे स्थान पर मैं खुद चलकर जाऊंगा। By saying this, God himself passed between the pieces. और ये कहते हुए परमेश्वर खुद इस स्थान को पार करके गए। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, what is the message which God has given you and me by this? और इससे क्या संदेश परमेश्वर आपको और हमें देते हैं? You need not cross. तुम्हें पार नहीं करना है। I will cross in your place. मैं तुम्हारे स्थान पर मैं पार करूंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, in this covenant cutting, there is a very important incident from the culture side. और जो संस्कृति के रीति से हम देखते हैं तो बहुत ही एक मुख्य
घटना है इसमें। While standing in between the cut pieces, the animal body should be facing each other. और जब वो जानवर के टुकड़े वहाँ पड़े होते हैं तो एक दूसरे के सामना उसे करना पड़ता है And it is like facing face to face. और आमने सामने होने चाहिए। The two people entering into a covenant, और जो दो लोग वाचे में बनते हैं they are seeing face to face. वह आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं, They are shaking their hands. अपने हाथों को हिलाते हैं वो। The cutting of the wrist is there, which I will explain to you tomorrow. और जो हाथ की कलाई को काटना होता है वह मैं आपको कल बताऊंगा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, our Lord in our place has entered into a covenant on behalf of us. और हमारे परमेश्वर ने हमारे बदले वो खुद ही उस वाचे का एक और हिस्सा बने हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, when we have failed in the covenant, जब हम वाचे में असफल हुए, we need not die like the animal has died. हमें नहीं मरना जैसे वह जानवर मारा गया। In our place, he died. हमारे स्थान पर उन्होंने अपनी जान दी। We have failed many times in our life, हमारे जीवन में कई बार हम चूके हैं, but still our Lord has never left us nor forsaken. लेकिन परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने कभी हमें छोड़ा या त्यागा नहीं। When Adam committed sin, he was not shocked. और जब आदम ने पाप किया तो उन्हें अचंभित वो नहीं हुए थे, Because we hear in the word of God that the lamb which was crucified before the foundations of the earth, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में यूं पढ़ते हैं कि उनका मेमना इस पृथ्वी के नींव के पहले ही वह बलिदान हुआ। he has made a provision for what if we fall, what to do. तो पहले से ही उन्होंने एक तैयारी की कि अगर हम गिर जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, That provision is forgiveness. और वह है क्षमा याचना। He is redeeming us back, वह हमें फिर से छुटकारा दिलाते हैं, हमें खरीदते हैं। as you and me who have entered into a covenant. और जैसे आप और हम जो एक वाचा में बंधे हैं, If we have fallen down, अगर हम जीवन में फिसल चुके हैं, can we come back to God? क्या हम परमेश्वर के पास फिर से लौटेंगे? Receive the forgiveness which God is giving you और जो क्षमा परमेश्वर देते हैं, क्या हम उसे ग्रहण करेंगे and reset our relationship with God. और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को एक बार फिर से कायम करेंगे? He died in my place and your place. और मेरे और आपके स्थान में परमेश्वर बलिदान हुए। Restore your relationship back with Christ, अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ एक बार फिर से स्थापित करो and you will enjoy a blessed relationship with God. और तुम एक बहुत ही सुंदर रिश्ते का आनंद उठाओगे परमेश्वर के संग। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें।